عمران خان کے کس کیس کی سماعت اب عوام کے سامنے ہوگی اور جج نے کس نوعیت کا مطالبہ کیا ہے؟ صحافی بن، ٹیشو پیپر مت بن کیونکہ تمہیں ایک دن کوڑا دان میں پھینک دیا جائے گا۔ عمران خان سے کون سا جرنیل چاہتا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور یہ کتنی بڑی سازش تھی، اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو عوام کی نظروں میں کمزور کرنا تھا۔ الیکشن کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتا دیا، مگر کیا ایسے ہوگا؟ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی جماعت نون لیگ کو پیاری ہو گئی۔ آج کی اس اہم گورکھ دھندا میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا۔ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان کے اوپر ملٹیپل کیسز ہیں، اراؤنڈ 200 FIR ہو گئیں۔ کچھ کیس چل رہے ہیں جن میں سے ایک کیس ایسا ہے جس کو سائفر کیس کہا جاتا ہے۔ وہ سائفر جو امریکہ کی دھمکی کے نتیجے میں آیا، جس کو اسد مجید نے بھیجا، عمران خان نے اٹھایا، ٹرانسلیٹ کروایا، جلسے میں لہرا دیا، اس کو ماننے سے انکاری ہوئے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے کہا بھی آیا ہے، پھر کہا سازش نہیں مداخلت ہوئی ہے، پھر کہا مداخلت نہیں سازش ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا، جعلی دستخطوں سے صدر کے ایک آئین قانون بنا دیا گیا۔ پھر اس جعلی دستخطوں کی روشنی میں جو ہے ایک جعلی جج بن گئے، ایک جعلی عدالت بن گئی، اور اس نے جج صاحب نے خود کو اور عدالت کو اٹھا لے جا کے اڈیالہ جیل چلے گئے اور اٹک جیل میں جا کے سماعت کرتے رہے۔ پہلی بار دیکھا گیا کہ جج اور عدالتیں جیل جا رہی ہیں اور وہاں پہ جا کے قیدی سے سماعت ہو رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، گواہ کون ہے، کیا کس عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ اب وہی جو سائفر کیس تھا، اس کو چیلنج کیا تھا PTI نے ہائی کورٹ کے اندر۔ اس کے اوپر پھر ایک بینچ بنا تھا، وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ یہ ایسے بینچ ہیں بنے ہوئے جن کو پتہ نہیں کون سی بیماری لگی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اکثروں کا۔ جب بینچ ٹوٹا اور اس بینچ کے اندر ایک جج صاحب ہیں جن کا نام بھی آپ کو بتائیں گے، جن کا کام بھی آپ کو بتائیں گے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، جدید دور ہے، پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں، پہلے بھی آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر کیسز دکھائے ہیں، ساری چیزیں چلی ہیں، تو کیوں نہ سائفر کیس کو بھی ہم پاکستان کی عوام کے سامنے اس کو ٹی وی کے اوپر دکھائیں، اور جب اس کی سماعت ہو تو پوری قوم دیکھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا ہے، اور کیا یہ کیس جو ہے سائفر کیس یہ دکھایا جائے گا ٹی وی کے اوپر یا نہیں، یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا سائفر کا اوپن ٹرائل کا عندیہ۔ سائفر کیس اوپن ٹرائل کی عمران خان کی درخواست میں جسٹس میاں گل حسن، یہ کوئی پٹھانی ہے، اورنگزیب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل سے اہم مکالمہ۔ کہتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم 2023 میں رہ رہے ہیں، یہ اویئرنیس کا، اوپننیس کا دور ہے، اوپن کورٹ، اوپن سماعت، شفافیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل میں سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ سب چیزیں آپ کو یقیناً دیکھنا ہے۔ عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ اب یہ جو جج گل حسن، میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، چیف جسٹس یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہو اگر اس سماعت کی جو ہے ہو رہی ہے، اس کو عوام کے سامنے کیمروں کے ذریعے PTV کے اوپر براہ راست دکھایا جائے، جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کئی گھنٹوں کی سماعت کی۔ تو اب انہوں نے یہ تجویز دی ہے، اپنے ریمارکس دیے ہیں، بینچ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے کہنے کے اوپر کیا پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اوپن یہ ٹرائل کریں گی؟ بھائی جان کسی صورت نہیں کریں گی۔ اس کی وجہ آپ بیل مجھے مار، اور وہ بھی ٹکر مار اتنے زور سے کہ میں مر جاؤں، میں ننگا اور گنجا ہو کے رہ جاؤں، تو وہ تو کسی صورت نہیں اس کو کریں گے اوپن ٹرائل، اور عوام دیکھیں، چونکہ اس میں گواہ جھوٹے، سائفر کیس جھوٹا، اس کے تحت بننے والا قانون جعلی دستخطوں والا جھوٹا، جج جھوٹے، عدالت جھوٹی، سب چیزیں اس میں جو ہیں وہ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو وہ کیوں کریں گے؟ آپ بیل مجھے مار والی بات کی پوری قوم کو دکھائیں اور قوم مزید سمجھے، اسے شعور آ جائے کہ عمران خان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو اس سارے عمل میں یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کے جو ریمارکس ہیں اچھے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھیے کہ حامد میر صاحب نے بہت اچھا کالم لکھا، میں چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھیں۔
बड़ा बैलेंस कॉलम है और बड़े हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ें। एक तो उन्होंने कहा कि भाई साफ़ी बन, टिश्यू पेपर मत बन, तुम्हें एक दिन कूड़ा दान यानी कि डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। और इससे कबल भी ऐसे होता रहा। और जो सहाफ़ी इमरान खान को इजराइल को तस्लीम करने की बात करते थे, आज वो अमेरिका जाके बैठे हैं और आइन और कानून की पासदारी की बातें करते हैं और वहाँ से भाषण देते हैं। अहमद मीर साहब के इस कॉलम के अंदर एक और बड़ा इंकशाफ ये है कि जहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों को दर्ज दिया, काश अहमद मीर साहब अपने भाई आमिर मीर को भी ये बात कहते कि उनके टाउट मत बनो, ये खिलवाड़ मत करो, तुम एक सहाफ़ी थे, तुम एक मेरे भाई हो, बाकियों को तो आपने दर्ज दे दिया लेकिन आप अपने भाई का कभी जिक्र नहीं करते। वो सबसे बड़ा टिश्यू पेपर और मदारी और उनका टाउट है, उनको भी समझाइए आप। मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अहमद मीर साहब हमारे बड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कॉलम लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे थे, बाकी सहाफ़ी भी थे, जनरल बाजवा थे, फैज़ हमीद भी थे, वज़ीर आज़म भी बैठे थे। तो उन्हें कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, सहाफ़ियों के सामने बातचीत हो रही थी कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें और हम जो हैं वो भारत और इसराइल का गठजोड़ तोड़ने के लिए इसराइल को आप तस्लीम करने की बात करें। जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बार बार अहमद मीर साहब की तरफ देखा और कहा, हाँ हामिद तुम क्या कहते हो। अहमद मीर साहब ने कहा, खान साहब पीछे देखेंगे तस्वीर किसकी लटकी है। खान साहब ने मुड़ के पीछे देखा तो बाबा कायदे आजम की तस्वीर थी। तो अहमद मीर ने कहा कि क्या इनसे बड़ा कोई लीडर हो सकता है, क्या आप इनसे बड़े लीडर हैं। इमरान खान ने कहा नहीं, ये तो सबसे बड़े लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा कायदे आजम की बात को मानता हूं, जो मेरा लीडर है अहमद मीर साहब ने। तो इसके ऊपर बात खत्म होगी। मगर वहां पे अहमद मीर साहब को और बाकी सहाफ़ियों को वार्निंग दी गई कि खबरदार इसके ऊपर अगर आपने बातचीत की और इसको काउंट किया और कहीं पे ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब से इसराइल को तस्लीम करने वाली बात हम बरतानिया में बैठ के जानते हैं। ये मुख्तलिफ दौर में कोशिशें हुई, अब भी कोशिशें जारी हैं। मसला पाकिस्तान के अवाम है, मसला बाबा कायदे आज़म भी हैं और लोग भी हैं। ये चाहें कल बैत कर लें, और वैसे भी इनके रवाबत तो हैं इसराइल के साथ, अंदरून खाना मोसाद, ये सारे इकट्ठे मिल के काम करते हैं। तो ये इमरान खान से कश्मीर के हवाले से वो जो अमल करवाना चाहते थे, मैं शुरू दिन से कहता था, जो लोग मुझे आज से 4-5 सालों से सुन रहे हैं, इमरान खान को इन्होंने मैनेज करके इक़्तिदार में लाया, तमाम बुरे काम इनसे करवाएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी है। इमरान खान सबसे बड़ा खतरा और धमकी थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, चूंकि यूथ इनके साथ थी। तो वो चाहते थे कि इनका ऐसा कचुम्बर निकालें कि अवाम इनका साथ छोड़ दें, मगर वो उसमें नाकाम हुए। अवाम मजीद इनके साथ शामिल होगी और इसराइल को अगर इमरान खान तस्लीम कर लेते तो इनके लिए सिर्फ मौलाना साहब ही काफ़ी थे। वो जूतों समेत आ जाते अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस और इमरान खान को भी उठा के ले जाते उनके डंडा बरदार लोग। तो इमरान खान से ये काम करवा के वो चाहते थे कि इसको साबित कर दें यहूदियों का एजेंट है, इसके बाद अवाम इसका नाम नहीं लेंगे। तो अब भी ये कोशिशें हो रही हैं। तो इमरान खान ने उस वक्त बड़ी हिकमत के साथ ये चीज़ें की। अहमद मीर साहब का कॉलम पढ़िएगा, लेकिन उसके मेन जो सियाक व सबाक थे मैंने आपके सामने रखे हैं। दो नुक्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। इलेक्शन कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, और सुप्रीम कोर्ट के पूछने और कहने के ऊपर उनको ये तारीख देनी पड़ी। तो उन्होंने कहा है जी, इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हम करवा देंगे, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि सदर पाकिस्तान के साथ आप बैठें इलेक्शन कमीशन और आपस में तारीख का डिसाइड करें। और सदर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कोई इलेक्शन करवाने ना करवाने के हवाले से वायलेशन नहीं हुई। मगर मैं ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से मुस्बत सोच रखता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर। हर बंदे की ऑब्जर्वेशन होती है, हमको बड़े फिलासफर नहीं है, शायद कुछ अच्छे काम करेंगे, मगर ये काजी फायज ईसा साहब आप माजी को भूल गए हैं, वो बल्कि माजी को याद रखा है, पता नहीं आपको कौन सी बीमारी है, और हाल को आप भूल गए। ये जो बाकी केसेस हैं उनके ऊपर क्यों नहीं आते? ये फैज़ाबाद धरना मरना, ये बाकी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। जो इस दौर में जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं उसके ऊपर आप कब एक्शन लेंगे, उसके ऊपर कब समाअत होगी, कब ये चीज़ें सुनी और देखी जाएंगी? माजी के ऊपर तो बड़ा जोर रखा है, उसमें एक मखसूस पार्टी को क्या फ़ायदा होता है, तो इसलिए आप उसको डिस्कस करते हैं। ये एक बड़ा रेलिवेंट नुकता है जो हमने उठाया। अब देखना ये है कि इलेक्शन 11 फरवरी के होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, चीफ जस्टिस ने सुन लिया, वो सदर जिसके पास ये जाना नहीं चाहते थे इलेक्शन कमीशन और सारी चीज़ें, अब क्या मशावरत करेंगे और ये चीज़ें हो सकेंगी, और इलेक्शन का सिनेरियो कैसा होगा? पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, पीटीआई क्या चाहती है, ये बाद में समझ आई कि पीपल्स पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और
पीटीआई को इसलिए चाहती है कि उनके साथ ज्यादती ना हो, कहीं मियाँ साहब भी दो ताई अक्सरियत ना ले जाएं या वो मजबूत ना हो जाए, उनको अपने लाले पड़े। मुखलस वो आज भी नहीं है, वो अपने एक बंदा अपनी बेटी की जंग लड़ रहा है, दूसरा बेटे की जंग लड़ रहा है। तो यहाँ पे अवामी मफादात और मफाद और कौम के मफाद की बात नहीं है, ज़ाती मफाद की बातें हो रही हैं। तो देखते हैं इलेक्शन 11 फरवरी को होते हैं या नहीं होते। अच्छा दिन है, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई को इजाज़त मिल जाए तो फिर भी ठीक है। खान साहब तो डेफिनेटली बाहर ही होंगे, ये खिलवाड़ पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा आएगा उनको ठीक करेगा, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अगर इमरान खान को नाइल किया गया, इलेक्शन में उनको ना स्पेस दी गई तो उसके ऊपर आवाम बोलने कोई रिएक्शन आए तो चीज़ें होगी। मैं एक बड़ा जुमला कहने लगा हूँ, ये इलेक्शन में पीटीआई को अगर बाहर रखा गया, अवामी राय को मुकद्दम ना समझा गया, धांधली भी की गई और इस तरह की हरकतें हुई, तो याद रखिएगा 1971 में यही इस्टेब्लिशमेंट ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मिलकर उनके साथ किया था, बांग्लादेश बन गया था। मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेश बनेगा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसी हरकतें होंगी। अगले में हम ये जो अफ़गानी माजरीन को भेज रहे हैं उसके ऊपर, आज़ाद कश्मीर का ये जो छोटा सा घर है उसके अंदर जो 48 बच्चे पाल रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, उसको ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, अनवारुल हक काकर साहब की जमात बाप पार्टी, बाप वालों की बाप पार्टी नून लीग के अंदर शामिल हो गई। इसमें मुख्तलिफ नाम हैं जो बाप पार्टी के लोग हैं वो शामिल हुए हैं। इसमें अब्दुर्रहमान खैतरान, इनके तो नाम भी ऐसे ऐसे, मसूद लोनी, मोहम्मद खान लहड़ी, नूर मोहम्मद दोमड़, आई थिंक ऐसे ही कहते होंगे माजरत के साथ। तो ये वो लोग हैं बाप पार्टी के जो नून लीग के साथ शामिल हुए हैं। और बाप वालों की बाप पार्टी जिस दूसरे के साथ शामिल हो, इस बात से आप समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट किस पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। यानी कि अगर बाप पार्टी वाले नून लीग में लोग जा रहे हैं ना, तो ये नून लीग वालों को सामने लाएंगे। लेकिन वो क्या मंजर होगा, वो क्या नज़ारा होगा, वो कैसी हुकूमत होगी, वो कैसा दौर होगा, वो किस तरह के अमल अमाल होंगे जिसमें 5-6 पार्टियों के साथ मिल के वो वज़ीर आज़म साबिक जो 2 ताई अक्सरियत से मुंतखब हुए थे, अब लूली लंगड़ी हुकूमत के तहत आएंगे। 3-4 कुर्सी की टांगें होती हैं, एक आधी टांग मियाँ साहब की कुर्सी की अपनी होगी, बाकी 3 टांगें कहीं और होंगी। वो जब चाहेंगे उसको लात मारेंगे तो वो गिर जाएगी और फिर उठेगी आवाज़, वोट को इज्जत दो, मुझे बचा लो, मुझे क्यों निकाल रहे हो, मुझे यहीं पे रखो, फलां चीज़ें करो। हालात जो हैं वो इस नगर पे जाएंगे कि सारे शर्मा जाएंगे। ये जो थोड़ी सी शर्म हया बाकी है, इससे भी पर्दे उठ जाएंगे। और देखते हैं कि ये बाप वाले जिस तरफ जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, इसके साथ क्या चीज़ें होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया। शेर अफजल मरवत साहब का कंप्लीट इंटरव्यू आपने ज़रूर देखना है, जल्द लगेगा। गोरख धंधा विद अबरार कुरैशी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम उसको लगाएंगे, उसकी एडिटिंग हो रही है। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी के साथ।